प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, पर पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम की चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ, एक क्षण में सोचो क्या करोगे, बोलो कहां तक तुम टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। लॉर्ड रामा हैज बीन द लिविंग incarnation of endurance and challenges, and during these harsh times our challenges are nothing as compared to him. Apart from that, bringing Lord Rama was also necessary because he is going to be the example for this chapter. या मैं यूं कहूं, the committee which brings Lord Rama in front of us every year, the Ram Lila committee is going to be an example for not-for-profit organization. So on that note, let's begin the chapter not-for-profit organization. So today's chapter is not-for-profit organization, a 10-marker question from which we can see questions of 1-marker MCQ, 3-marker small practical and 6-marker long practical question. So before starting this chapter, I would like to give you a situation. There is a library in my locality, a community library, in which different kinds of people visit, elderly, kids, etc. etc. Now these people pay a monthly, weekly or yearly subscription to the library holder in return of the services provided by them. We have to understand one thing, that the library here is asking people or charging people some nominal amount to which we call subscription, which can be weekly, monthly or yearly in return of the services provided by them. Now you have to understand one thing. The money which has come from the people as a subscription cannot be used for any luxury items or for the proprietor or the founder. But on the other hand, this money which is coming from the people should be used for the growth of this organization. उस organization में और development, growth करने के लिए ही उस पैसे को use कर सकते हैं, not for any other purpose. Now that was a very simple situation regarding a simple not-for-profit organization. There are also many other types of not-for-profit organization, one earlier discussed, such as the Ram Lila Committee or a school, an hospital or any sports academy. The features of all these organizations are somewhat similar, which we'll understand more deeply in the next topic, which is features of an NPO. एक NPO के क्या features या क्या main characteristics होते हैं. So beginning from the first characteristic, which is entity. If you remember class 11th, we studied it about separate legal entity. Business and businessmen are two different entities. दुकान और दुकानदार दो अलग अलग लोग होते हैं. So NPO में भी ये same concept applicable होता है. An NPO and its promoters or founders are two different entities in the eyes of the law. It is a legal entity which is separate from its promoters. Promoters, founders and NPO, completely different entities. Moving on, purpose. As we have discussed earlier, that the purpose of an NPO was a social cause. It is always working for the society. The example of my library was a community library. It was working for the community, for the people, for the society. On the other hand, a Ram Lila committee also works for the people, for the society, school, society, hospital, society, sports academy, society. So you have to understand the purpose of an NPO is not profit, but only for the social cause. So if you read the purpose out loud, I've written cultural, social, educational, religious, professional objectives. Nowhere I have written that its motive is profit, because as the word suggests, not for profit means the profit is not the main objective. Moving on, the ownership. It is not owned by an individual or group of individuals, but belongs to the society. Yet again, it does not belong to any individual, but it belongs to the society at large. Moving on, profit not the objective. Now this point is not that simple. You have to understand the depth of this topic. See, I've written restriction in application but not on earning profit. What does that mean? See, an NPO has no restriction on earning profit. You can earn as much as profit you like. But remember one thing, the application of such profit should only be used for the growth of that NPO. कहने का मतलब ये है, प्रॉफिट कमाने में कोई रोक टोक नहीं है, पर उस प्रॉफिट को आप कैसे यूज कर रहे हो, कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसमें रोक टोक है. लाइब्रेरी को पैसा मिला,
लाइब्रेरी उन पैसों से एक नई कार, लग्जरी कार नहीं खरीद सकता है, बट ऑन द अदर हैंड उसको और नई बुक्स लानी पड़ेंगी, हो सकता है कैफेटेरिया खोले, हो सकता है नया फर्नीचर डाले, तमाम चीजें, पर कोई भी लग्जरी या कोई भी पर्सनल कॉज उसके पीछे नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एनपीओ. Moving on, management done by elected persons known as trustees or managing committee. एक एनपीओ का मैनेजमेंट कोई ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी करती है. एंड एट लास्ट, सोर्स ऑफ इनकम. एक एनपीओ के कमाई का सोर्स क्या क्या हो सकता है? देयर आर मेनी सोर्सेज, फ्यू आर रिटन बिलो. एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस, donations, grants and surplus from operations. One more thing, सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर ही आता है, which I have discussed before. वो जो मंथली वीकली अमाउंट आपको देनी पड़ती है वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम ही होती है. ये सारी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस होगा इन द नेक्स्ट वीडियो. फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू द क्रक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनपीओ. सो दीज ऑल वर द फीचर्स ऑफ एन एनपीओ. मूविंग ऑन, the next topic is financial statements for not-for-profit organizations. What all statements you have to prepare in this chapter? There are 3 statements. First is receipts and payment account, the other is income and expenditure account, and the last is balance sheet. Please remember, receipts and payment account will always be the part of your question. Receipts and payment account will be the part of your question, and income and expenditure account and balance sheet will be the part of your answer. ये क्वेश्चन में दिया होगा एंड दिस विल बी योर आंसर. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट विल बी योर क्वेश्चन. ओके, इसके बारे में भी इन डेप्थ एनालिसिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. राइट नाउ इट इज अ वेरी लाइट चैप्टर. आराम से बैठ के सिर्फ देखना है, समझना है, चीजों को नोट करना है. मूविंग ऑन, द नेक्स्ट टॉपिक इज difference between commercial organizations and not-for-profit organizations. Not-for-profit organizations जो हम आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और commercial organizations जो हम ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं. सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली और कंपनी, ये सारी की सारी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस थी जो पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए काम करती हैं. पर आज का टॉपिक है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इन दोनों में क्या फ़र्क है? वेल, आई एम प्रीटी श्योर इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक प्रॉफिट के लिए काम करती है और एक सोशल कॉज के लिए काम करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर मे बी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो व्हिच यू माइट बी एबल टू फिगर आउट. बट इफ आई टेल यू द डिफरेंस, द फर्स्ट बेसिस इज ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट कमाना ही इनका सोल पर्पस होता है. पर अगर बात करें एनपीओ की तो उनका मेन पर्पस होता है सोशल सर्विस टू पब्लिक एट लार्ज. वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस फैक्ट अर्लियर. मूविंग ऑन, रिजल्ट. कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट या तो निकलता है प्रॉफिट या निकलता है लॉस, डिस्कस्ड अर्लियर इन क्लास 11th. बट अगर एनपीओ की बात करें तो इसमें निकलता है सरप्लस या डेफिशिट, विच विल डिस्कस इन क्लास 12th. ओके, घबराने की बात नहीं है. प्रॉफिट का दूसरा नाम ही सरप्लस है एंड लॉस का दूसरा नाम ही डेफिशिट है. बस नाम अलग है, मतलब वही निकल के आता है इनका. नेक्स्ट बेसिस, ओनरशिप. ओनरशिप, कौन ओन करता है? एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन को उसका प्रोप्राइटर ओनर ओन करता है, बट ऑन द अदर हैंड एनपीओ का, जैसे कि मैंने बताया, कोई भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन नहीं करता है. ये बिलोंग करती है सोसाइटी को. सोसाइटी मतलब जो लोग इसके मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स हैं. मूविंग ऑन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. In class 11th, we used to make P&L account, and the profit which used to come from the P&L account was distributed among the partners or the owners. वो profit आपको जो मिलता था, that was given to the partners or the owners. But in an NPO, जो भी आप प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करेंगे, मैंने बताया कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सरप्लस. जो भी आप सरप्लस कमाएंगे वो किसी भी मेंबर को नहीं मिलेगा, बट विल बी एडजस्टेड इन कैपिटल फंड. Not distributed among members but is adjusted in capital fund. Capital fund यहाँ पे कैपिटल का ही दूसरा नाम है. इसको एडजस्ट कैसे करते हैं आगे जाके देखेंगे. बट फिलहाल के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट बढ़ता था पार्टनर्स को, पर यहाँ पे बढ़ता नहीं है, पर कैपिटल फंड में एड अप हो जाता है. ऑन द अदर हैंड, लास्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. क्लास 11th में वी यूज्ड टू मेक ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यहाँ पे बैलेंस शीट तो सेम रहेगी, पर उसके अलावा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखने को मिलेगा. इन डेप्थ एनालिसिस विल बी वेटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर. मूविंग ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई एम टेलिंग यू, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक की क्लैरिटी अगर अभी हो गई तो हो गई,
उसके बाद एनपीओ बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है. सो जस्ट माइंड इट. दिस टॉपिक इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द टॉपिक इज कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ध्यान रखना, कैपिटल एंड रेवेन्यू किसी भी ट्रांजैक्शन का नेचर होता है, स्वभाव होता है. सो इफ आई एम राइटिंग कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ध्यान रखना कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिट्स भी बन के आता है. ओके, कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू रिसिट्स भी बन सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं पहले एक्सपेंडिचर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ. ओके, सो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर माने कि खर्चे, और उन खर्चों का नेचर हो सकता है दो, या तो कैपिटल या रेवेन्यू. सो मूविंग ऑन फ्रॉम द फर्स्ट बेसिस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहला बेसिस आता है आपका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन का नेचर एक्चुअली में कैसा होता है. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डील करते हैं विद परचेज ऑफ गुड्स. ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शंस डील करते हैं विद परचेज ऑफ एसेट्स. समझते हैं इसका मतलब. एक फर्नीचर की शॉप है, उस फर्नीचर की शॉप में फर्नीचर परचेज किया गया. अच्छा, ऑब्वियसली बात है, फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर में डील करती होगी, फर्नीचर बेचती खरीदती होगी. तो जो भी चीज़ें हम बेचते खरीदते हैं उनको हम गुड्स बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो अगर एक फर्नीचर की दुकान फर्नीचर खरीदेगी तो वो गुड्स खरीद रही है, और अगर वो गुड्स खरीद रही है, परचेज ऑफ गुड्स हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. देखो खर्चा तो हो ही रहा है ना सामान खरीदने में, बट दैट परचेज विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड अगेन एक फर्नीचर का शोरूम है, पर उस फर्नीचर के शोरूम में लेट्स से कोई वाटर प्यूरिफायर खरीदा या कोई एसी खरीदा, ऐसी कोई चीज खरीदी जो उस फर्नीचर शॉप में यूज होने वाली है, ना कि बिकने वाली है. तो ऐसे में वो बन जाती है हमारी एसेट, और एसेट को अगर आप परचेस करोगे तो बन जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो आई गेस काफी सिंपल मैंने बताया यहाँ पे. अगर कोई ऐसा सामान खरीद रहे हो जो बेचने के लिए है तो वो बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो या ऐसे कोई सामान खरीद रहे हो, परचेजिंग एन एसेट विच विल बी यूज्ड और केप्ट इन द बिजनेस, देन इट विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. मूविंग ऑन, रिकरेंस. रिकरेंस का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कितनी बार रिपीट होता है, रिपीटेशन कितना है इसका. तो ध्यान रखना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग होता है नेचर में. रिकरिंग मतलब बार बार होते रहता है. ऑलराइट, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर होता है, मतलब कभी कभार आपको देखने को मिलेगा. इसका एग्जांपल ये है कि आपके स्कूल में टीचर्स को दिए जाने वाली सैलरी मंथली होती है, हर महीने देनी पड़ती है. तो अगर वो हर महीने देनी पड़ रही है, मतलब बार बार देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है वो क्या हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. स्कूल के लिए वो खर्चा क्या हो गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट ऑन द अदर हैंड तुम्हारे स्कूल में बस खरीदी, बस हर महीने तो खरीदनी पड़ती नहीं है, राइट. तो यू आर परचेजिंग अ बस, और यू आर यू आर परचेजिंग द फर्नीचर ऑफ द स्कूल, or you're purchasing or constructing a new block of the school. Such expenditure does not happen very often, therefore these are non-recurring in nature, which makes them a capital expenditure. Alright, moving on, revenue generation capacity. Simple शब्दों में बोले तो benefit. The benefit of revenue expenditure lasts only for the current year. 2020 में खर्चा करा, 2020 तक ही उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा. द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. 2020 में खर्चा करा, 21, 22, 23, 24 तक देखने को मिल रहा है. दैट इज जस्ट अ रफ फिगर. ओके, मेरी कार की हर 9-10 महीने में एक ईयरली सर्विसिंग होती है, जिसका बेनिफिट मुझे सिर्फ उस साल तक का मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 2020 में अगर मैं सर्विसिंग कराता हूं तो उसका बेनिफिट भी 2020 तक ही मिलेगा. 21 में वो खर्चा मुझे वापस से करना पड़ेगा. तो गाड़ी की सर्विसिंग कराने का जो खर्चा हो रहा है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसका बेनिफिट मुझे सिर्फ करंट ईयर में देखने को मिल रहा है. पर अगर मैं बात करूं एक ब्रांड न्यू कार खरीदने की, तो एक ब्रांड न्यू कार खरीदने का बेनिफिट आपको उस साल मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा, उसके अगले साल भी मिलेगा. आई थिंक 5 से 6 साल तक आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बस एक करंट ईयर तक का मिलते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बेनिफिट्स आपको करंट ईयर से भी आगे तक का मिलते हैं. एंड द लास्ट बेसिस इज अमाउंट इन्वॉल्व्ड. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अमाउंट्स यूजुअली स्मॉल होती है, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की अमाउंट्स यूजुअली लार्ज होती है. नाउ यू विल आस्क मी दैट हाउ डज यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ स्मॉल अमाउंट एंड अ लार्ज अमाउंट. दैट इज रिलेटिव. मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिखा है
दैट फिगर इज रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, ये समझने के लिए मुझे आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। इफ आई आस्क कि ये लाइन छोटी है, बड़ी है, मीडियम है, इसका साइज कैसा है, यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी। मे बी कुछ बच्चे कह भी सकते हैं कि हाँ सर देख के तो छोटी ही लग रही है, या कोई कह सकता है देख के तो बड़ी लग रही है। बट frankly speaking, I cannot tell the size of the line is small or big until and unless I am given another line which can be used as a comparison. तो अब मेरी जो initial line थी, line number 1, it looks bigger. Okay? वो तभी लग रही है जब मेरे पास कंपेयर करने के लिए एक और लाइन पड़ी हुई थी, और अगर मैं इस लाइन के बजाय कोई और लाइन बनाता तो अब वही लाइन जो मैं बड़ी कह रहा था वो छोटी हो गई है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो आपको क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें यू हैव टू फिगर आउट दैट अमाउंट विच यू वांट टू कंसिडर एज रेवेन्यू और कैपिटल, या स्मॉल और बिग। उसके लिए हमें बाकी अमाउंट से उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी वी कैन से कि अमाउंट छोटी है या बड़ी है। लेट्स से कोई भी एक जनरल स्टोर है, तो एक जनरल स्टोर एक छोटी सी दुकान होती है, उस दुकान के लिए 500,000 का खर्चा भी बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है। अगर मैं बात करूं किसी कंपनी की, तो उस कंपनी में 500,000, 2,000, इफ इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ करोर्स, देन उसके लिए 500,000, 2,000 बहुत ही छोटी रकम होगी। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिलेटिविटी, कि आसपास की चीज़ों को हम कैसे उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। That is it. Thank you. जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो सैक फोरम को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली वीडियो अपडेट्स मिलते रहें।